Hello, friends. Welcome to Dream Orientation, IELTS Writing Excellence. In this channel, as I always give you some of the ideas and some vocabulary words of task on each day. So, our today's task is um, this is again a problematic essay. In some countries, young people are not only richer but also safer and healthier than ever before. However, they are often less happy. What do you think are the reasons, and for this, what can be done to help? जैसे कि हमारा आज का टास्क है एज आई टोल्ड यू दिस इज अगेन अ प्रॉब्लमेटिक essay. See dear, I am just continuing the series of problematic essays. The previous two essays we have done on the basis of uh, reasons and effects, and today our essay is reasons and solutions. So keep in mind there are two kind of problematic essays. Reasons and effects can be on the one side, and on the other side reasons and solutions. So whatever they are asking, we have to respond according to that. If they are asking reasons and solutions, we have to provide reasons along with their solutions. And if our question is reasons and effects, in that case we don't provide any kind of solution, only reasons and problems we describe. सो हियर आज का हमारा टास्क है कि कई कंट्रीज़ में यंग पीपल आर नॉट ओनली रिचर, मतलब ये यंग पीपल जो हैं सिर्फ रिचर ही नहीं हैं बट ऑल्सो वो सेफ भी हैं एंड हेल्दी भी हैं देन एवर बिफोर, पहले से कहीं ज़्यादा वो हेल्दी हैं, सेफ हैं एंड रिचर हैं. हाउ एवर बट क्या है, दे आर ऑफन लेस हैप्पी. वो लेस हैप्पी हैं, वो खुश नहीं है, मतलब उनके पास जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है वो खुश नहीं है अपनी लाइफ से उतने ज़्यादा. व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस, एंड वो पूछ रहे हैं कि इसके क्या रीजंस हो सकते हैं एंड फॉर दिस व्हाट कैन बी डन टू हेल्प. इसका मतलब है कि क्या किया जा सकता है इस बारे में उनकी हेल्प करने के लिए. नाउ लेट्स डिस्कस द वोकैबुलरी फर्स्ट. Some we can write in this few and certain. Then countries we can write nations and territories. Young people, there are many words for writing as young people. We can write modern generation, new generation, young blood, youngsters and youth. See dear, youth. Youth, although this is a plural word, but we always consider this word into singular. We can't write youth are. We should write youth is. That is right only, okay? Youth we consider in a particular group. ऐसे ही मॉडर्न जनरेशन इज़ लिखेंगे हम, नॉट आर. न्यू जनरेशन भी इज़ आएगा. सिमिलरली यंग ब्लड भी इज़ आएगा, ओके, नॉट आर. ओनली यंगस्टर्स एंड यंग पीपल हियर, there are two words by which we can consider them plural and we can use plural helping verbs with them, but rest of them, a modern generation, new generation, young blood and youth, we should consider these words into the particular singular word, and then we'll write only singular kind of helping word with this. Then richer, wealthier, affluent and prosperous, all these words are very good for writing as richer. Then safer. Safer we can consider secure, guarded and protected from harm. Healthier को हम लिख सकते हैं good physical condition. They have good physical condition and they are physically fit, or they have physical fitness and good health. Less happy we can write less satisfied and not comfortable. Help we can write assist, aid or assistance. Solutions, as we have the second task is solutions, so obviously we want some kind of keywords or synonyms related to solutions, like measures, ways and methods. See dear, these are the vocabulary words. If you are not understanding any kind of word, please write me in the comment sections so that I can make you better understand. Now let's move on the ideas. Here we have reasons first. I have written here two reasons. The first reason is youngsters become workaholic. They suffer from anxiety because of having more stress of work, by which they are becoming mentally and physically depressed, which takes them far away from happiness.
हमारा फर्स्ट रीज़न है कि जो आजकल के यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक बन चुके हैं। देयर फॉर दे सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मतलब टेंशन। उनके पास इतना ज़्यादा काम हो गया आजकल के टाइम में कि उनके लाइक वो टेंशन में ही रहते हैं सारा दिन, जिसकी वजह से क्या है, टेंशन की वजह से उनकी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो वो मेंटली मतलब मेंटली दिमाग से, और फिज़िकली मतलब हेल्थ से, जो उनकी हेल्थ होती है, फिज़ीक होती है, तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, वो इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, वो अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो मेंटली और फिज़िकली उनको थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। और जिसकी वजह से अगर कोई बंदा, ये तो आपको पता ही है कि कोई भी पर्सन अगर वो हेल्दी नहीं है, मेंटली उसके माइंड पर टेंशन रहती है और फिज़िकली भी वो हेल्दी नहीं है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, तो ऑब्वियसली वो कैसे खुश रह पाएगा, वो खुश होगा ही नहीं। दैट्स अ रीज़न दैट दे ऑलवेज रिमेन फार अवे फ्रॉम द हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस से कहीं ज़्यादा दूर रहते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न इज़ ड्यू टू बिजी लाइफ स्टाइल। मतलब वो तो था हमारा कि बिजी लाइफ स्टाइल की वजह से वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, और सेकेंड रीज़न है हमारा कि वो बिजी लाइफ स्टाइल की वजह से दे हैव टू पे मोर अटेंशन ऑन देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज़, बाय विच spending less time with family and friends can be the reason of less happiness। सी टीयर इसका मतलब क्या है कि बिजी लाइफस्टाइल की वजह से वो लेस अटेंशन दे पाते हैं अपनी फैमिली को भी, अपने फ्रेंड्स को भी, जिसकी वजह से क्या है कि उनकी जो उनकी रिलेशनशिप्स होती हैं वो ब्रेकअप हो जाता है उनका। और ये तो आपने सुना ही है कि हमारी असली खुशी हमारे रिलेशंस में होती है। अगर हमारे रिलेशंस ही अच्छे नहीं हैं हमारे अपनों के साथ, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स के साथ, तो हम कभी खुश नहीं रह पाते, ऑल्दो हम कितने भी ज़्यादा रिचर हों। सो ये हमारा सेकेंड रीज़न है। नाउ लेट्स मूव ऑन द सॉल्यूशंस ऑफ दीज टू रीजंस। द फर्स्ट सोल्यूशन इज़, जैसे कि मैंने लिखा था, दे आर मेंटली एंड फिजिकली डिप्रेस्ड। सो हियर उसका सोल्यूशन है, यंगस्टर्स शुड टेक ब्रेक फ्रॉम वर्क बाय प्लानिंग एक्सकर्जन्स ओकेजनली सो दैट दे कैन रिड्यूस देयर स्ट्रेस बाय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस। इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा था कि वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, फिजिकली एंड मेंटली वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने आप को अगर टाइम नहीं दे पाते तो उन्हें थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ेगी, उन्हें करनी चाहिए प्लानिंग अपने आप के लिए, सो दैट एक्सकर्जन्स, एक्सकर्जन्स क्या होते हैं, आउटिंग्स, हमें पिकनिक और आउटिंग्स थोड़ी प्लान करनी चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है किसी के साथ जाना है, हम खुद भी थोड़ा थोड़ा बाहर घूम के आ सकते हैं, अपने आप को टाइम दे सकते हैं, मतलब अपने आप को टाइम देना। उसके लिए हमें पिकनिक और थोड़ी आउटिंग्स यंगस्टर्स को प्लान करनी चाहिए, सो दैट वो अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस कर सकें। देन हमारा सेकंड सोल्यूशन है, मॉडर्न जनरेशन शुड ऑल्सो स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली विच असिस्ट देम टू फील बेटर बाय शेयरिंग देयर जॉयज एंड सॉरोज विद पेरेंट्स एंड दे गेट अप्रोप्रिएट सोल्यूशंस ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। जैसे कि हमारा सेकंड वहाँ पर रीज़न था कि वो अपनी फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाते, उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो उसका यही सोल्यूशन है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। मतलब ऑल्दो दे आर अनएबल टू spend their time with the family members on weekdays, but on weekends they should spend more and more time with their family members and friends। जो कि उन्हें हेल्प करता है बेटर फील करने के लिए। और इसी वजह से जो भी उनके जॉयज़ होते हैं, मतलब उनकी जो हैप्पीनेस होती है, कोई अच्छा हुआ होता है उनकी लाइफ में, एज वेल एज सॉरोज़ होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सारा कुछ शेयर कर पाते हैं। अगर वो टाइम स्पेंड करेंगे तो वो शेयर भी करेंगे हैप्पीनेस एंड सॉरोज़, एंड दे गेट अप्रोप्रिएट सोल्यूशंस ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। इसी वजह से वो अपनी प्रॉब्लम्स के अप्रोप्रिएट सोल्यूशंस भी उन्हें मिल जाते हैं। सपोज अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, वो फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई सोल्यूशन तो उसका मिलता ही है। सो दिस इज़ आवर सेकेंड सोल्यूशन। नाउ लेट्स मूव ऑन द अनदर रीज़न। Another reason is the most dominant reason in modern world. The growth of electronic communication does not provide the actual happiness of a relationship. Thus, being active in artificial lifestyle that keeps changing the friendships and thoughts can also be the reason of psychological stress and some mood disorders. This is, as I told you, a very dominant reason nowadays। आजकल क्या है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का वर्ल्ड चल रहा है।
इसमें क्या है कि हम सारा दिन ऑनलाइन एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। यंगस्टर्स तो ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पर। हर एक साइट पर उनका अपना अकाउंट बनाया होता है, तो वो उसमें ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। वो अपनी एक्चुअल रिलेशनशिप्स को टाइम नहीं देते। इसकी वजह से क्या है, मतलब वो जो आर्टिफिशियल हैप्पीनेस उन्हें मिलती है रिलेशनशिप्स की, मतलब वो उनके आर्टिफिशियल फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स हैं उनके जो लाइक कीप चेंजिंग, जो मतलब चेंज होते रहते हैं, मतलब जो टेम्प्ररी फ्रेंड्स हैं उनके, परमानेंट फ्रेंड्स नहीं बनते, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड्स नहीं बनते, उनके टेम्प्ररी फ्रेंड्स बनते हैं। और उनके थॉट्स भी चेंज होते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने आज किसी और से बात की, कल किसी और से करेंगे, तो उनके ओपिनियंस, उनके थॉट्स चेंज होते रहते हैं। जिसकी वजह से क्या है, मतलब जो उनकी लाइफ में एक्चुअल खुशी होती है फ्रेंडशिप की, वो हो नहीं पाती, और उन्हें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है। एंड सम मूड डिसऑर्डर्स, ऑब्वियसली उनका मूड जो है चेंज होता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज ऑल्सो द रीज़न ऑफ लेस हैप्पीनेस। नाउ लेट्स मूव ऑन द सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन है, अ मेजर रोल कैन बी प्लेड बाय beloved ones to make realize youngsters about their strengths and weaknesses, so that instead of wasting precious time on social media, they can get actual happiness by pursuing their interests in free time, like painting, reading, gardening, photography. That is help to gain self satisfaction, by which they can be safe from being trapped by selfish and artificial online world. जैसे कि हमारा पिछला रीज़न था ऑनलाइन कम्युनिकेशन विद स्ट्रेंजर्स, तो उसमें हम फर्स्ट आते हैं। तो इसमें मैंने ये सोल्यूशन क्या बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द मीनिंग ऑफ ट्रैप। ट्रैप क्या क्या मतलब होता है बच्चे, जाल। इसका मतलब है जाल, मतलब बीइंग ट्रैप्ड मतलब है जाल में फंस जाना, किसी के जाल में फंसना। देन बिलव्ड वंस क्या होते हैं, हमारे नियर एंड डियर वंस, लाइक हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स। सो दीज ऑल काइंड ऑफ पर्सनस हु आर वेरी नियर टू अस, हु आर वेरी क्लोज टू अस फ्रॉम हार्ट, सो वी कैन कंसिडर दैम बिलव्ड वंस। सो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसके लिए जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन से लाइक सेव करने का वे है, वो ये है कि जो हमारे बिलव्ड वंस हैं वो एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं इसमें। वो अपने लाइक जो यंगस्टर्स होते हैं, वट एवर उनके जो भी लगते हैं, फ्रेंड्स लगते हैं, उनके सिबलिंग्स लगते हैं, तो वो उन्हें रियलाइज़ करवा सकते हैं उनके स्ट्रेंथ्स, मतलब उनके प्लस पॉइंट्स, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, एंड वीकनेसेस, उनके माइनस पॉइंट्स क्या हैं, सो दैट जो क्या है कि वो अपना जो प्रीशियस टाइम होता है वो वेस्ट करने की बजाय सोशल मीडिया पर वो अपना इंटरेस्ट परस्यू करें। उनका जो भी इंटरेस्ट, उनके जो भी हॉबीज़ हैं, लाइक पेंटिंग, रीडिंग, वट एवर दे हैव हॉबीज़, दे शुड परस्यू इन देयर फ्री टाइम, जो कि उनके लिए हेल्पफुल होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए, एंड बाय विच वो सेफ भी रहते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड के जाल में फंसने के लिए। तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा सेफ रहते हैं और उन्हें सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस भी मिलती है। See dear, these all are three reasons and three solutions which I have told you. I hope you have understood each and everything. But if you are not understanding any kind of point, any kind of idea or vocabulary, please write me in the comment section. I will tell you. Um, Thank you for watching this video. I hope you like this. Thank you. Have a nice day ahead.